متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دوہری شہریت کے معاملے پر فیصلے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی سراغ کا شکار ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ عزیز آباد کے لال قلعہ گراؤنڈ میں عوامی نمائندوں اور تحریکی ذمہ داران سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سالانہ $12 ملین کا زر مبادلہ ملک بھیجتے ہیں۔ انہیں ووٹ دینے اور ووٹ لینے کے حق سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ عدلیہ دوہری شہریت کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے ان سیاسی حالات کو بھی مد نظر رکھے کہ جب شہریوں پر ملک کی زمین تنگ کر دی گئی تھی اور وہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ کیا یہ ہماری لاکھوں بیرون ملک دوہری شہریت حاصل کرنے والے پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کی توہین نہیں ہے؟ اور ملک کے ادارے بھی جانتے ہیں، عدالتیں بھی جانتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، حکومتیں بھی جانتی ہیں جن بنیادوں پر اس نے ملک چھوڑا اور دوہری شہریت اختیار کی۔ ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ ہر شخص کی قسمت نواز شریف اور شہباز شریف جیسی نہیں۔ انہیں تو سعودی عرب نے جلا وطنی کے بعد رہنے کے لیے محل اور نوکر چاکر تک دیے۔ اگر شریف برادران کسی مغربی ملک چلے جاتے تو ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد سیاسی پناہ لینے پر مجبور ہوتے۔ اب ہر کسی کو تو محترم نواز شریف اور ان کی فیملی کی طرح حکومت ڈیل کر کے یہ مراد تو نہیں دیتی جائیے آپ سعودی عرب کے شاہ کے مہمان نوازی میں چلے جائیے، آپ کو رہنے کے لیے محل بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، نوکر چاکر بھی ملے گا۔ الطاف حسین نے کہا کہ قرض اتارو ملک سوارو کا نعرہ لگا کر محب وطن پاکستانیوں سے مدد مانگنے والے آج ان کی حب الوطنی کو مشکوک قرار دے کر ان کی توہین کر رہے ہیں۔ حکومت کو درخواست کرنا کہ دوہری شہریت قانون میں ترمیم کی جائے۔ لال قلعہ گراؤنڈ میں دوہری شہریت موضوع لندن تو خطاب کردیا انہوں نے کہنا سی کہ پوری دنیا میں 80 لاکھ تو ود پاکستانی موجود ہیں جبکہ $12 بلین کا سرمایہ پاکستان بھیج دینے جس کی وجہ ملک کی صنعت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہنا سی کہ دوہری شہریت والے عوام نے سیاسی دباؤ تے اپنی جان دے خوف نال پاکستان تو ہجرت کر کے یورپی ممالک میں حاصل کی ہوئی ہے جنہوں نے نااہل قرار دینا زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں موجود پاکستانی یوم آزادی رل کے مناندے نے۔ پاکستان وچوں نواز شریف تے شہباز شریف بھی طویل جلا وطنی گزار کے آئے نے تے ہن ملک دی سیاست وچ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف پنجاب دے وزیر اعلیٰ نے عدالتاں نے حکومت تو درخواست کرنا کہ دوہری شہریت قانون وچ ترمیم کی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے اور الیکشن میں حصہ لینے کے معاملے پر دوہری شہریت والوں کا ریفرینڈم کروایا جائے۔ چیف جسٹس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد کراچی میں ایم کیو ایم کے اراکین پارلیمنٹ اور عہدیداران سے ٹیلی فونک خطاب میں الطاف حسین نے سوال کیا کہ کیا دوہری شہریت پر حب الوطنی مشکوک قرار دینا جائز ہے؟ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ سے محروم رکھنا زیادتی نہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ مجبوری کی حالت میں ہجرت کرنا سنت ہے۔ ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہر کسی کو شریف خاندان کی طرح شاہی مرات میسر نہیں ہوتی۔ اگر سعودی عرب انہیں پناہ نہیں دیتا تو وہ بھی کسی مغربی ملک میں ویزا ختم ہونے پر دوہری شہریت اختیار کرتے۔ سعودی عرب انہیں پناہ نہیں دیتا اور وہ کسی مغربی ملک میں ہجرت کر کے کسی بھی مغربی ملک میں آتے تو کیا وہ 5 سال کا تو گزر جانے کے بعد کیا وہ پھر مزید اسٹے کے لیے اسائلم اپلائی نہیں کرتے کیا؟ الطاف حسین نے کہا شریف برادران 8 سال تک بیرون ملک رہے، انہیں بھی عہدوں کا حق نہیں۔ الطاف حسین نے مطالبہ کیا کہ دوہری شہریت کے معاملے پر عوام سے رائے لی جائے۔ ان سے ریفرینڈم کر کے یہ سوال پوچھا جائے کہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اور اپنے ملک میں الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں یا نہیں، پوچھا جائے ریفرینڈم کرا کے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ووٹ کے حق سے محروم کیے جانے پر بیرون ملک مقیم پاکستانی رنجیدہ ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہر سال اربوں ڈالر زر مبادلہ پاکستان بھیجیں۔ خدارا سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین جو چوڑا ہے تو پارلیمنٹیرین سے بٹی شہریت رکھنے والے معاملے بابت اجلاس گھرائے ہوا ہے۔ اجلاس جو مقصد بٹی شہریت پہ بحث کرنا ہے۔ لندن کا ٹیلی فونک خطاب میں الطاف حسین سوال اٹھاریو تو
छा मिठी शहरियत रखण सां पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म थी वेंदी? हुन चयो त छा अमरीकी सदर बाराक ओबामा मुकम्मल तौर अमरीकी आहे? कैलिफोर्निया जो गवर्नर आर्नल्ड शेवान्सगर बि ऑस्ट्रेलवी शहरी आहे। अल्ताफ हुसैन चयो त हू पाकिस्तान खां ॿाहिरि रहंदड़ लखें ॾह वापसनि जे जज़्बनि खां आगाह करे रहियो आहे। कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि दोहरी शहरियत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर शक दुरुस्त नहीं है। दोहरी शहरियत वालों ने मजबूरन बैरून मुल्क सुकूनत इख्तियार की है। मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के दिल वतन अजीज के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को नवाज शरीफ की तरह सऊदी अरब की मेहमान नवाजी नसीब नहीं होती। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कारकुनान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर ओहदेदारान से खिताब करते हुए कहा कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोहरी शहरियत की बुनियाद पर वोट के हक से महरूम करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों से दोहरी शहरियत पर दोबारा रुजू नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि दोहरी शहरियत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर शक दुरुस्त नहीं है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिल वतन अजीज के लिए धड़कते हैं। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस और तमाम जजेस साहिबान से अपील है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी दोहरी शहरियत के फैसले की बड़ी हामी है। नवाज शरीफ की तरह सबको सऊदी अरब की मेहमान नवाजी नसीब नहीं होती। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि दोहरी शहरियत के बारे में फैसला आवाम को करने दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों से रेफरेंडम करा लें कि क्या वो वोट देना चाहते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुल्क को अरबों डॉलर भेजने वाले पाकिस्तानियों को वोट देने और लेने के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। रेफरेंडम के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। अजीजाबाद के लाल किला ग्राउंड में दानिशवरों, MQM के अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों से वोट लेने और वोट देने पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि एक रेफरेंडम कराया जाए जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि वो मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। रेफरेंडम करवाया जाए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है दोहरी शहरियत रखने वाले, दोहरी शहरियत के हामिल, उनसे रेफरेंडम करके ये सवाल पूछा जाए कि वो वोट देना चाहते हैं और अपने मुल्क में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या नहीं, पूछा जाए रेफरेंडम करा के। अपनी तकरीर के दौरान अल्ताफ हुसैन ने अमरीकी सदर बाराक ओबामा, गवर्नर कैलिफोर्निया आर्नल्ड शेवान्सगर और भारत में कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी की दोहरी शहरियत की मिसाल भी पेश की। क्या इंडिया की हुक्मरान जमात कांग्रेस की सरबराह मिसेस सोनिया गांधी पैदाइशी तौर पर इंडियन है? अगर नहीं है तो ये कैसे है कि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह है? अमेरिका के सदर बाराक ओबामा मुकम्मल तौर पर अमरीकी है? उनके वालिद तो पैदाइशी तौर पर अमरीकी नहीं थे। फिर बाराक ओबामा को दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क का सदर कैसे बनने दिया गया? MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मुल्क पर जब भी बुरा वक्त पड़ा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से मुल्क की खिदमत की। बुरे वक्त में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि इलेक्शन में इनको हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बैरून ममालिक लोगों की हुब्बुल वतनी को मशकूक करार देना दुरुस्त नहीं। कराची के 70 से 80,000 अफराद दोहरी शहरियत रखते हैं। उनका कहना था कि दोहरी शहरियत पर फैसला अवाम को करने दिया जाए। अजीजाबाद के लाल किला ग्राउंड में मुनक़दा इजलास के दौरान अल्ताफ हुसैन ने अपने टेलीफोन खिताब के दौरान कहा कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी वतन की सलामती के लिए कोशिश रहते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी को मशकूक करार देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती जबर के बायस बैरून मुल्क जाने वाले का क्या कसूर है। अपने लिए नहीं, बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह कर रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कराची के 70 से 80,000 अफराद दोहरी शहरियत रखते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कई साल मुल्क से बाहर रहे। उन्होंने कहा कि दोहरी शहरियत पर फैसला अवाम को करने दिया जाए। जो पंजाब के वजीर आला हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से और नवाज शरीफ का मुल्क से कई साल बाहर रहे या नहीं रहे? अब उनके लिए अगर कोई कहता है कि साहब वो रहे
करूं, लेकिन उन्होंने कोई दोहरी शहरियत हासिल नहीं की। तो ये ऐसी किस्मत और पाकिस्तानियों की कहां है, हर किसी को शाह सऊदी अरबिया का खानदान मेहमान नवाज बनाता अपने यहाँ। MQM के कुछ लोग सऊदी अरब में मुलाजिम थे, उनका सिर्फ जुर्म ये था कि वो MQM के मेंबर थे। सऊदी हुकूमत ने उन्हें पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जहाँ अडियाला जेल में उनके साथ जो मजालिम हुए, उन मजालिम की बड़ी लंबी तफसीलात है, दर्दनाक। नाखून खींचे गए, बाल नोचे गए, खाल उतारी गई। असगर खान केस में ऐवान बात करेंगे MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की, जिनका कहना है कि मुल्क के मुफाद में सुप्रीम कोर्ट दोहरी शरीयत के हवाले से फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि इससे होने वाला नुकसान कौमी नुकसान होगा। कराची से किरण खान की ये रिपोर्ट। लाल किला ग्राउंड कराची में MQM के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली, सेनेटर्स और दीगर उहदेदारान से खिताब करते हुए MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों को वोट न देने और इंतखाबात में हिस्सा न उनके साथ ज्यादती है। उनका कहना था कि अगर दीगर मगरबी ममालिक में भी ऐसे कवानीन बन जाएं तो कोई भी पाकिस्तानी निजात किसी दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट या कौंसिल का रुकन नहीं बन सकेगा। जो अरबों खरबों रुपया हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, उन्हें पाकिस्तान में वोट देने के हक से महरूम करना, लेने के हक से महरूम करना, क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर दोबारा रुजू नहीं करना चाहिए? अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अगर दोहरी शरीयत रखने वालों को वोट देने का और हासिल करने का हक नहीं है, तो फिर 8 साल मुल्क से बाहर रहने वाले शरीफ बरादरान को भी कोई ओहदा लेने का हक नहीं होना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरह हुकूमत डील करके ये मनात तो नहीं देती जाइए आप सऊदी अरब के शाह की मेहमान नवाजी में चले जाइए। अल्ताफ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील की है कि वो इस मामले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रेफरेंडम कराएं और अवाम को फैसला करने दें कि वो वोट देने या इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या नहीं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ कैम खान, दुनिया न्यूज, कराची। और यहाँ MQM के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि दोहरी शरीयत पर अवाम को फैसला करने दिया जाए। बैरून मुल्क लोगों की हुब्बुल वतनी को मशकूक करार देना दुरुस्त नहीं। वो कराची में टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे। जो दोहरी शरीयत रखते हैं, क्या वो बखुशी रजा सबके सब हर कड़े मुश्किल वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती की इज्तिमाई दुआएं करते हैं? 14 अगस्त जो हमारी आजादी का दिन हम मनाते हैं, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप का कोई और मुल्क हो, वहाँ तमाम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल जुबान मिलकर यौम पाकिस्तान मनाते हैं। वो दोहरी शहरियत की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान में वोट देने के हक से महरूम करना या वोट लेने के हक से महरूम करना सिर्फ इस बुनियाद पे जो उनकी दोहरी शहरियत है। क्या इस फैसले पर हमको सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की जो अकाबरीन है, पॉलिसी साज इदारे हैं, क्या उनको अपने अपने फैसलों पर दोबारा रुजू नहीं करना चाहिए? क्या रिव्यू नहीं करना चाहिए? मैच तो जारी है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, और इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही है। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करते हैं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि दोहरी शरीयत रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हर कड़े वक्त में मुल्क का साथ दिया है। मुहिब वतन पाकिस्तानियों को मशकूक करार देने से उनकी इमदाद बंद हो गई तो मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने और क्या कहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत रखने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हर कड़े वक्त में मुल्क का साथ दिया है। इन पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों को नाराज न किया जाए। उन्होंने ज़र मुबादला भेजना बंद कर दिया तो पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे, ये कहना था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का, जो लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद कराची में MQM के अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारान व जिम्मेदारान से टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे। क्या ये अमल
लाखों बैरून मुल्क दोहरी शहरियत हासिल करने वाले पाकिस्तानियों के जज्बे हुब्बुल वतनी की तौहीन नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट से महरूम रखना ज्यादती नहीं? इस फैसले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तशवीश लाहक हो गई है। इस तरह के फैसलों से मुहब्बे वतन समंदर पार पाकिस्तानियों को सिवाय इसके क्या पैगाम दिया जा रहा है कि आप न वोट दे सकते हैं, न इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अल्ताफ हुसैन का मजीद कहना था कि बहुत से पाकिस्तानी जान महफूज करने और बहुत से तालीम हासिल करने बैरून मुल्क गए, जहां उन्होंने शहरियत भी हासिल कर ली, लेकिन नून लीग इस फैसले की हिमायत कर रही है, जबकि इनके कायद नवाज शरीफ कई साल तक डील करके शाही खानदान के मेहमान रहे। उन्होंने भी 8 साल बैरून मुल्क गुजारे, तो उन्हें भी वजीर आजम और वजीर आला बनने का कोई अख्तियार नहीं। उनके लिए अगर कोई कहता है कि साहब वो रहे जरूर, लेकिन उन्होंने कोई दोहरी शहरियत हासिल नहीं की, तो ये ऐसी किस्मत और पाकिस्तानियों की कहां कि हर किसी को शाह सऊदी अरबिया का खानदान मेहमान नवाज बनाता अपने यहाँ। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि 80 लाख से ज्यादा समंदर पार पाकिस्तानी $12 बिलियन सालाना पाकिस्तान भेजते हैं। जितनी भी नागानी आफत आई, माशी बहरान आए, दोहरी शहरियत रखने वालों ने अरबों डॉलर की इमदाद भेजी। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मुतालबा किया है कि दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों के वोट डालने और इलेक्शन लड़ने पर रेफरेंडम कराया जाए। उन्होंने बताया कि समंदर पार पाकिस्तानी सालाना $12 अरब भेजते हैं। अगर वो पाकिस्तानी नहीं तो वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों बनाई गई है? कराची के लाल किला ग्राउंड में एमक्यूएम के अरकान कौमी सूबाई असेंबली और अहदेदारों से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि दोहरी शरीयत के अमूर पर इजलास बुलाया जाए, जिसका मकसद सिर्फ मकालमा हो। उन्होंने सवाल किया कि सदर बाराक ओबामा मुकम्मल तौर पर अमरीकी हैं। एमक्यूएम के कायद का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके वोट डालने और इलेक्शन लड़ने पर रेफरेंडम कराया जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम है दोहरी शहरियत रखने वाले दोहरी उनसे रेफरेंडम करके ये सवाल पूछा जाए कि वो वोट देना चाहते हैं और अपने मुल्क में इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या नहीं, पूछा जाए रेफरेंडम करा के। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात दोहरी शहरियत और इसके हामिल अफराद के खिलाफ हैं, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ सऊदी शाही खानदान के घरों में 8 साल तक नहीं रहे? जो पंजाब के वजीर आला है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से और नवाज शरीफ का मुल्क से कई साल बाहर रहे या नहीं रहे। उनके लिए अगर कोई कहता है कि साहब वो रहे जरूर, लेकिन उन्होंने कोई दोहरी शहरियत हासिल नहीं की, तो ये ऐसी किस्मत और पाकिस्तानियों की कहां कि हर किसी को शाह सऊदी अरबिया का खानदान मेहमान नवाज बनाता अपने यहाँ। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मुहिब्बे वतन हैं। अगर दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी नहीं तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत क्यों बनाई गई? कैमरामैन खलील अहमद के साथ मोहम्मद इरफान, जियो न्यूज, कराची। कराची में मारूफ मौसीक़ार एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त परॾेह में रहंदड़ पाकिस्तानी जूं दिलियूं वतन लाइ धड़कंदियूं आहिनि, खावन वोट जो हक़ खसणु ज़्यादती आहे। कराची में बिटी शहरियत के हवाले से इजलास के खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त इजलास जो मकसद बिटी शहरियत वारे मामले ते परॾेह में रहंदड़ पाकिस्तानियुनि जे जज़्बनि खां अवाम खे आगाह करणु आहे। हुन सवाल कयो त छा बिटी शहरियत रखण सां पाकिस्तानी हुजण जो हक़ ख़त्म थी वञे थो? अल्ताफ हुसैन चयो त परॾेह में रहंदड़ पाकिस्तानियुनि जूं दिलियूं वतन लाइ धड़कनि थियूं। हू बिटी शहरियत बाबति ॻाल्हियूं पंहिंजे न पर मुल्की मुफ़ादनि ख़ातिर करे रहियो आहे। अल्ताफ हुसैन चयो त परॾेह में रहंदड़ पाकिस्ताननि खां वोट जो हक़ खसणु ज़्यादती आहे। सुप्रीम कोर्ट ऐं ॿियनि इदारनि खां बिटी शहरियत वारे मामले ते राब्तो करे सघिजे थो। हुन चयो त छा अमेरिकी सदर बराक ओबामा पूरी तरह अमेरिकी शहरी नाहे ऐं कैलिफोर्निया जे गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वटि ऑस्ट्रेलिया जी शहरियत आहे? छा पोइ उहे अहम उहिदनि ते न आहिनि? मकानी निज़ाम ऐं कॉम्परस कारकुननि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मजबूरी की सूरत में हिजरत करना सुन्नत है। मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वालों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं?
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के दोहरी शहरियत के केस के फैसले से मुताल्लिक हक परस्त सेनेटर्स, मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली और रेजिडेंसी कमेटी के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को $12 बिलियन कमाकर भेजने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों से उनका दोहरी शहरियत का हक छीना जा रहा है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर अफराद आज भी 14 अगस्त और दीगर मौक़ों पर मुल्क की सलामती के लिए दुआगो हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हिजरत करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर कड़े मुश्किल वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती की इज्तिमाई दुआएं करते हैं। 14 अगस्त जो हमारी आज़ादी का दिन हम मनाते हैं, वहाँ तमाम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल जुबान मिलकर यौम पाकिस्तान मनाते हैं। हिजरत बहालत मजबूरी करना सुन्नत रसूल है। अल्ताफ हुसैन ने आवाम से एक सवाल में पूछा कि क्या सोनिया गांधी और ओबामा दोहरी शहरियत के हामिल नहीं हैं, जबकि नवाज शरीफ की तरह हर किसी को नौकर चाकर नहीं मिल सकते। पंजाब के वजीर आला हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से और नवाज शरीफ साहब मुल्क से कई साल बाहर रहे या नहीं रहे। MQM के कुछ लोग सऊदी अरब में मुलाजिम थे, उनका सिर्फ जुर्म यह था कि वो MQM के मेंबर थे। सऊदी हुकूमत ने उन्हें पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जहां अडियाला जेल में उनके साथ जो मसाइल हुए। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर अपील की, हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत के सामने अपील करता हूँ, एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहने वालों का रेफरेंडम करा लें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की खिदमत करने वालों को नजरअंदाज किया गया तो पाकिस्तान पर खौफनाक असरात मरतब होंगे। कैमरा नासिर सईद के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1, कराची। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि अगर दोहरी शहरियत रखने वालों के जज्बात पर शक किया जा रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत क्यों बनाई गई। मुल्क में दोहरी शहरियत के मामले पर बात करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम कराची में मकालमे के लिए पंडाल सजाया गया। शिरकत से टेलीफोन पर खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था, क्या दोहरी शहरियत से पाकिस्तान की शहरियत खत्म हो जाती है? क्या सुप्रीम कोर्ट से दोहरी शहरियत पर दोबारा रुजू नहीं करना चाहिए? अल्ताफ हुसैन का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल जश्न आजादी मनाते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। मुत्तहिदा के कायद ने सवालात उठाए हैं कि क्या बराक ओबामा मुकम्मल तौर पर अमरीकी हैं? क्या सोनिया गांधी पैदाइशी भारतीय हैं? क्या कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर ऑलर शिवाज नेगर ऑस्ट्रेलिया के शहरी थे? क्या दोहरी शहरियत वालों को मुल्क से बेदखल करना जुल्म नहीं? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को दोहरी शहरियत पर वोट से महरूम रखा जाए? उन्होंने कहा कि अगर दोहरी शहरियत रखने वालों के जज्बात पर शक किया जा रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत ही क्यों बनाई गई। अल्ताफ हुसैन ने चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान से इस्तदा की कि वो दोहरी कौमियत पर किए जाने वाले फैसले पर नजरसानी करें और बैरून मुल्क रहने वालों का वोट देने और वोट लेने के मसले पर रेफरेंडम करवा लें। कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के नाल धड़कते ने वोट पाने इलेक्शन में हिस्सा लेने मामले से दोहरी शहरियत वाला ने रेफरेंडम करवाया जाए। चीफ जस्टिस अपने फैसले पर नजरसानी करन। लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद कराची में MQM के अरकान पार्लियामेंट के अहदेदारां नाल टेलीफोन खिताब में अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि दोहरी शहरियत हुकूम वतनी मशकूक करार देना जायज है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वोट तो महरूम रखना ज्यादती नहीं। उन्होंने कहना कि मजबूरी की हालत में हिजरत करना सुन्नत है। मुल्क छड्डन से मजबूर करने वालों ने भी सजा मिलनी चाहिए। हर किसी को शरीफ खानदान की तरह शाही मरात मुयसर नहीं होंदियां। जो सऊदी अरब उन्होंने पनाह नहीं दिंदा तो वो भी किसी मगरबी मुल्क में वीजा खत्म होने तो दोहरी शहरियत इख्तियार कर दे। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि शरीफ बरादरान 8 साल तक बैरून मुल्क रहे, उन्होंने भी उहदियां का हक नहीं। अल्ताफ हुसैन ने मुतालबा किया कि दोहरी शहरियत के मामले से अवाम तो राय ली जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि वोट के हक में महरूम किए जानते बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रंजीता ने और सवाल करते हैं कि क्यों हर साल $18 से मुबादला पाकिस्तान भेजन। खुदारा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। टालने और इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर दोहरी शहरियत वालों का रेफरेंडम कराया जाए। चीफ जस्टिस अपने फैसले पर नजरसानी करें। लाल किला ग्राउंड अजीजाबाद कराची में MQM के अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारान से
टेलीफोनिक खिताब में अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि क्या दोहरी शहरियत पर हुब्बुल वतनी मशकूक करार देना जायज है? क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट से महरूम रखना ज्यादती नहीं? उनका कहना था कि मजबूरी की हालत में हिजरत करना सुन्नत है। मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। हर किसी को शरीफ खानदान की तरह शाही इमारत मुयस्सर नहीं होती। अगर सऊदी अरब उन्हें पनाह नहीं देता तो वो भी किसी मगरबी मुल्क में वीजा खत्म होने पर दोहरी शहरियत इख्तियार करते। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि शरीफ बरादरान 8 साल तक बैरून मुल्क रहे, उन्हें भी ओहदों का हक नहीं। अल्ताफ हुसैन ने मुतालिबा किया कि दोहरी शहरियत के मामले पर आवाम से राय ली जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि वोट के हक से महरूम किए जाने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रंजीदा है। वो सवाल करते हैं कि क्यों हर साल अरबों डॉलर ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजे। खुदारा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने दोहरी शहरियत के कानून में पार्लिमानी तरमीम का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है दोहरी शहरियत के खिलाफ फैसले के हामी लीगी रहनुमा और उनके कायद मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब में रहे। इस तरह उनको वजीर आला और वजीर आजम बनने का हक भी नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट कर रहे हैं। एमकेएम के मरकज 90 पर पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक खिताब करते हुए मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि दोहरी शहरियत के खिलाफ आने वाले फैसले पर बैरूनी मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी नाराज हैं। समंदर पार पाकिस्तानी समझते हैं कि इंतखाबात में हिस्सा लेने और वोट डालने पर पाबंदी आयद करके इनकी हुब्बुल वतनी को मशकूक बनाया जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी इस फैसले पर खुदा इंतहाई नाराज हैं, परेशान हैं, बड़बड़ा कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि हम दिल में मुल्क का दर्द क्यों रखें अगर हमारी पाकिस्तानियत को मशकूक समझा जाता है। मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून और इसके कायद मियां नवाज शरीफ दोहरी शहरियत के खिलाफ आने वाले फैसले के सबसे बड़े हामी बन रहे हैं। सऊदी अरब में 8 साल शाही मेहमान बन के रहने वाले मियां नवाज शरीफ को भी वजीर आला या वजीर आजम बनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। आज नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी दोहरी शहरियत का जो फैसला हुआ है, रखने वालों को मुताल्लिक फैसला हुआ है, उसकी बड़ी हानि है। वो कहती है कि दोहरी शहरियत रखने वालों को न वोट का हक होगा, न इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल होगा। तो आपके मुल्क से 8 साल भाग रहे हैं, आपको शासन करने और वजीर आला बनने का हक हासिल नहीं होना चाहिए। अपने खिताब में एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट मुश्तरका तौर पर मुल्क के मुफाद में पार्लियामेंट से दोहरी शहरियत के कानून में तरामीम करवाएं। तो जो आईनी रुकावट है, सब मिलकर अगर मुआवजा वतन और पाकिस्तान से प्यार है तो पार्लियामेंट के जरिए आईनी तरमीम की जाए। मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आई तो समंदर पार पाकिस्तानियों ने आगे बढ़कर भरपूर माली इमदाद फराहम की। मुल्क की तामीर और तरक्की में भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन सिकंदर बख्श के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। नाज़रीन, मिट्टी शहरियत वारो मामलो त वधी वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां पार्लियामेंटेरियन जी मेंबरशिप मुअत्तल करण खां पोइ मुत्तहिदा सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त अदलिया, हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन गॾिजी इन मामले जो हल कढनि ऐं कानून में तरमीम आणनि। 90 ते लंडन खां टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त मिट्टी शहरियत रखंदड़नि खे चूंड विहण जी इजाज़त न ॾियण ज्यादती आहे। संदसि वधीक छा चवणो, इन हवाले सां अपडेट्स लाइ राब्तो कयो आहे कराची में सन टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर मुश्ताक सर्की सां। जी मुश्ताक, ॿुधाइजो संदसि वधीक छा चवणो हो? लुबना मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जे सरबराह अल्ताफ हुसैन लंदन खां टेलीफोनिक खिताब कंदे 90 ते मौजूद एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर समेत मुख़्तलिफ़ जेके एमकेएम जो मरकज़ी शोबा आहिनि उन्हनि जे इंचार्जिस खे खिताब कंदे चयो आहे त जेको ॿिटी शहरियत वारो कानून आयो आहे या जेके पार्लियामेंटेरियन उन्हनि ते जेका बंदिश मणी वई आहे, न सिर्फ़ उहा चूंडियल नुमाइंदनि ते बंदिश आहे पर उन सां गॾोगॾु जेके 80 लख परदेही पाकिस्तानी आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहनि था, उन्हनि सां ज़्यादती बराबरि आहे। अल्ताफ हुसैन चयो त वाहिद पाकिस्तान आहे जिते हिन क़िस्म जी इहा शइ थी आहे, जॾहिं त ॿिया जेके आलमी ऐं ताक़तवर मुल्क आहिनि हुन मिसाल ॾींदे चयो त सोनिया गांधी जेका भारत में इंतहाई मक़बूल तरीन सियासी लीडर आहे, कॾहिं कॾहिं हिकु भेरो हुन वज़ारत उज़्मा लाइ बि कंटेस्ट कयो ऐं उन खां अलावा हिकु रूलिंग पार्टी जी सरबराह आहे, उहा बि जेको ख़ुदि जेको आहे भारतीय नेटिव न आहे। गॾोगॾु चयो त
बारक ओबामा जेको हिन वक़्तु अमरीकी सदर आहे उहो बि मुकमल तौर ते अमरीकी न आहे, छाकाणि त संदसि वालिद कंहिं ॿिए इलाइक़े जो हुयो, पर पाकिस्तान में इन क़िस्म जो कानून आणनि या वोट जो हक़ ॾियण तोड़े आम चूंडूं विढ़ण खां उन ॿिटी शहरियत वारे शख़्स खे रोकण उन्हनि सां मुकमल तौर ते ज़्यादती आहे। हुन चयो त हिन वक़्तु जेके आहिनि तक़रीबन 80 लख जेके परदेही पाकिस्तानी आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहनि था ऐं उहे पंहिंजी मर्ज़ी सां न पर उन मुख़्तलिफ़ मजबूरनि सबबु विया आहिनि। किन सां त सियासी इंतकाम या रियासत जो ॾाढ जबर थियो उहे मुल्कनि खां पाकिस्तान खां वञी ॿियनि मुल्कनि में उन्हनि पनाह वरिती आहे। गॾोगॾु कुझु रोज़गार सां इहे वियल आहिनि ऐं हिन वक़्तु बि जेके हर साल पाकिस्तानी आहिनि उहे 12 बिलियन जेको आहे ज़र मुबादला यानी पैसो उमाननि था पाकिस्तान जे खज़ाने में, जंहिंजी वॾी मदद थिए थी। हुन चयो त नवाज़ शरीफ़ खे जॾहिं हुकूमत सऊदी अरब मोकिलियो त हुनखे शाही महिमान बणायो वियो ऐं 8 साल उहो जलावतन रहियो ऐं हिन वक़्तु वरी मुल्क में सियासत पियो करे ऐं हुनजो भाउ पंजाब जो वॾो वज़ीर आहे। जेकॾहिं हुकूमत समूरनि जेके मजबूर माण्हू आहिनि उन्हनि खे इन नमूने सां परदे मोकिले त पोइ बिल्कुलु सही आहे, पर जेके मजबूरनि सबबु बननि था या जिन जो घेरो तंग करे उन्हनि खे मजबूर थो कयो वञे त पोइ उन्हनि ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ बि एक्शन कयो वञे जेके अहिड़ियूं हालतूं पैदा कनि था त जीअं माण्हू मजबूर थी ॿियनि मुल्कनि में असाइलम वठनि था। अल्ताफ हुसैन चयो त हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऐं अदलिया इन मामले खे रिव्यू करे इन ते नज़रसानी करे ऐं उनजो अहिड़ो हल कढे जो सभ जी दिल आज़ारी न थिए ऐं इन्हनि जो जेको कानून आंदो वियो आहे उन में तरमीम कयो वञे त जीअं 80 लख पाकिस्तानी मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहंदड़ आहिनि उन्हनि जी दिल आज़ारी न थिए ऐं उन जेका हुबुल वतनी आहे उन ते को बि शक न कयो वञे। हुन चयो त जेकॾहिं उहो बि नथो कयो वञे त पोइ गॾियल तौर ते हुकूमत हिकिड़ो रेफरेंडम कराए ऐं परदे में रहंदड़ राय जो हक़ ॾिनो वञे त उहे पाकिस्तान सां केतिरा सचा आहिनि उनजो पतो पइजी वेंदो। अल्ताफ हुसैन पंहिंजे ख़िताब में वधीक चयो आहे त 2005 जो ज़लज़लो हुजे या 2002, 2010 ऐं 2011 जो ॿोॾो हुजनि या बरसाती मामला हुजनि उन्हनि में परदे मां भरपूर इमदाद कई वई आहे मुतासिरनि लाइ ऐं उहे न थिए जो मुस्तक़बिल में उहे माण्हू पाकिस्तान सां इहो सहकार ख़तमु कनि जंहिंजो नुक़सान सिधी रीति पाकिस्तानी मईशत ते पए। जी मुस्ताक साहब की मेहरबानी अमान जी। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने दोहरी शरीयत पर रेफरेंडम कराने का मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस से अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील कर दी। कराची में अजीजाबाद के लाल किला ग्राउंड में MQM के अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों से टेलीफोन पर खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर शक करना दुरुस्त नहीं। वोट डालने और इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर दोहरी शरीयत वालों का रेफरेंडम कराया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील की कि वो दोहरी शरीयत के हवाले से अपने फैसले पर नजरसानी करें। दोहरी शरीयत पर सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारों से दोबारा रजू करना चाहिए। तमाम सियासी जमातें इस मामले पर दोबारा सोचें। मजबूरी की हालत में हिजरत करना सुन्नत रसूल है। उनका क्या कसूर जिन्होंने मार्शल लॉ और रियासती जबर के बायस दीगर मुल्कों में सियासी पनाह हासिल की। सब नवाज शरीफ की तरह सऊदी फरमा रवा के मेहमान नहीं बनते। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि बरतानिया, अमरीका और दीगर ममालिक में भी पाकिस्तानियों पर इस तरह की पाबंदियां लग जाएं तो क्या होगा। मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी से दोहरी शरीयत फैसले पर नजरसानी की अपील करते हुए इसे जज्बाए हुब्बुल वतनी की तौहीन करार दिया है। MQM के अरकान सूबाई कौमी असम्बली, सेनेटर्स और पार्टी के अहदेदारान से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को वोट और इंतखाबात में हिस्सा लेने से महरूम करना जुल्म और ज्यादती और जज्बे हुब्बुल वतनी की तौहीन है। बेशुमार अफराद रियासती जबर की वजह से बैरून मुल्क मुकीम है। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वतन से मोहब्बत पर रेफरेंडम कराए। उनका कहना था कि दोहरी शरीयत के मुखालिफ शरीफ बरादरान 8 साल तक सऊदी शाही खानदान के मेहमान बनकर मजे लूटते रहे। वो मगरबी मुल्क में रहते तो उन्हें 5 साल बाद सियासी पनाह की दरख्वास्त देनी पड़ती। शरीफ बरादरान को इंतखाबात में लेने का कोई हक नहीं। अब हर किसी को तो मोहतरम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की तरह हुकूमत डील करके ये मराहत तो नहीं देती जाइए। आप सऊदी अरब के शाह के मेहमान नवाजी में चले जाइए। आपको रहने के लिए महल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, नौकर चाकर भी मिलेगा।
अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सऊदी अरब में नौकरी करने वाले एमक्यूएम के कारकुनान को सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के हवाले किया और उन्हें अडयाला जेल में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दोहरी शहरियत के फैसले पर नजरसानी की अपील भी की। एमक्यूएम के कुछ लोग सऊदी अरब में मुलाजिम थे, उनका सिर्फ जुर्म ये था कि वो एमक्यूएम के मेंबर थे। सऊदी हुकूमत ने उन्हें पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दिया।